جس کا نام تھا شکنتلا، کالیداس کا ایک منظوم ڈرامہ تھا، تو بالکل سنسکرٹائزڈ، بالکل سنسکرت، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پرتھوی راج صاحب نے کالیداس کا رول کیا تھا اس میں، اور وہ مین رول تھا اس میں، 7-8 منٹ اکیلے اسٹیج پر وہ سولو بول رہے ہیں۔ انہیں دیکھا تو تھیٹر کے تو بہت بڑے اداکار تھے، فلم میں بھی بہت عمدہ کیا انہوں نے کام، لیکن تھیٹر کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھیٹر کے زیادہ بڑے اداکار تھے۔ تو ان کو جو دیکھا میں نے تو مجھے یہ لگا کہ یہ اکیلا آدمی بولے چلا جا رہا ہے 5-5 7-7 منٹ 10-10 منٹ، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ اسٹیج خالی ہے، بھرا ہوا لگ رہا۔ تو وہاں سے اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی تھیٹر کے بنے اور ایسا ہی کوشش کریں کہ کام کریں، تو تھیٹر کرتے رہے۔ ایک تھیٹر میں نے ہندوستان میں بھی کیا، دہلی میں، اس کا دم پاکستان آ گئے، الٹیمیٹلی آنا ہی تھا، تعلیم کے لیے میں وہاں تھا۔ آ گئے، آنے کے بعد یہاں کراچی 1960 میں، یہاں آنے کے بعد میں نے ایک کھیل کیا مغل اعظم، اس میں اکبر کا جو رول تھا، شہنشاہ اکبر کا، وہ میں نے کیا۔ وہ کھیل دیکھا ہمارے ریڈیو کے، ٹی وی اس زمانے میں نہیں تھا، ریڈیو کے ایک بڑے سینئر پروڈیوسر تھے ذاکر حسین صاحب، انہوں نے دیکھا، دیکھ کے اور وہ آئے تھے کھیل ختم ہونے کے بعد گرین روم میں، جہاں میک اپ وغیرہ ہوتا ہے اسے گرین روم کہتے ہیں، آئے اور آگے کہنے لگے بھائی تم ریڈیو آؤ۔ ریڈیو کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا جی ابھی مجھے آئے ہوئے مہینہ ہوا پاکستان، اور مجھے تو پتا بھی نہیں ریڈیو ہے کدھر، میں نے نہیں بتایا، انہوں نے کہا بندہ روڈ پہ آؤ تو یہاں ہے اور تم کل آ جاؤ۔ بس ریڈیو شروع ہو گیا، تھیٹر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر 67 میں ٹی وی شروع ہو گیا، ٹی وی کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ مگر پہلا پلے کون سا تھا آپ کا؟ ٹی وی کا میرا پہلا تھا مجرم، وہ کیا تھا زمان علی خان صاحب نے پروڈیوس، اس میں طارق عزیز تھے، میں تھا، مین رول طارق عزیز صاحب کا تھا، ٹی وی کیریکٹر تھے اس میں۔ تو وہ کھیل کیا، کرنے کے بعد پھر فوراً ہی ایک دوسرا مجھے آفر ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں آج کی طرح نہیں ہے کہ ٹی وی کے گیٹ میں داخلہ ہی ایک بڑا مشکل ہوتا تھا، اب تو خیر پھر اتنا مشکل نہیں رہا پی ٹی وی میں، مگر ایک زمانے میں پی ٹی وی کے گیٹ میں داخل ہونا ہی بڑی بات نہیں، تو اس وقت جب شروع ہوا ہے تو انہیں ضرورت تھی، تو جو ریڈیو کے یا تھیٹر کے جو بہتر آرٹسٹ تھے، ایکٹر تھے، انہیں اور ایکٹریسز تھی، انہیں خود بلایا۔ آغا ناصر صاحب اس زمانے میں یہاں جی ایم آفیشیٹ کر رہے تھے، پہلے بخاری صاحب تھے، ان کے فوراً بعد پھر آغا صاحب آ گئے۔ آغا صاحب ہمارا جو تھیٹر کا ایک گروپ تھا ڈرامہ گلڈ، اس کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، اور وہ یہاں ریڈیو پر بڑے سینئر پروڈیوسر رہے، بہت خوبصورت اسٹوڈیو نمبر 9 کے نام سے کھیل ریڈیو کے انہوں نے کیے ہیں، جو آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ پھر انہوں نے ٹی وی جوائن کر لیا تھا، تو انہوں نے پھر بلایا، اور بلا کے انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ آؤ نا، اب ٹی وی شروع ہو گیا ہے تو ٹی وی کرو۔ تو ہم لوگ آ گئے، میں، محمود بھائی مرحوم اور سلیم بھائی مرحوم، اب ہمارے ساتھ ہی سب کے ساتھ مرحوم ہی لگ گیا، میں ہی رہ گیا ہوں، قاضی واجد، ہم لوگ سب، طلعت حسین، جو ریڈیو سے متعلق تھے اور تھیٹر سے بھی، ہم لوگ وہاں گئے۔ بلکہ میری یہ میں ہمیشہ اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میرا جو آڈیشن جو فارم ہے وہ تو ایک فارمیلٹی ہے، وہ تو بھرنا ہی پڑتا ہے، تو وہ آغا صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے بھرا، آغا ناصر صاحب نے، اور اس پر مجھے یاد ہے لال قلم سے انہوں نے لکھا کہ یہ ہے یہ اس کا تجربہ ہے، اینڈ ہی از سوٹیبل فار ایوری کائنڈ آف رول۔ زبردست، یہ انہوں نے میرے آڈیشن پہ جو کمنٹس تھے وہ یہ لکھے۔ بہرحال یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے وہ براڈ کاسٹر اور ٹی وی کے اتنی بڑی پرسنالٹی، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ خیر بہرحال وہ ہم کرتے رہے، پھر میں دوسرا کھیل کیا چنار کے سائے، وہ بھی ٹھیک تھا۔ تیسرا کھیل کیا میں نے تقریب امتحان، اشفاق صاحب کی لکھی ہوئی تھی کہانی، اشفاق احمد صاحب، کیا خوبصورت لکھی، صحیح، بالکل،
अशफाक साहब की लिखी हुई थी, वो कहानी नहीं थी बल्कि वो था ही टीवी के लिए लिखा हुआ ड्रामा, तकरीब इम्तिहान। वो एक प्रोफेसर की कहानी थी कि जो एक कॉलेज में पढ़ाता है, बदसूरत है आदमी, अच्छा, यंग है, बदसूरत है, उसकी माँ भी बदसूरत थी, बाप खूबसूरत था। तो बाप ने सिर्फ बदसूरती की वजह से माँ और बच्चे को यानी बीवी और बेटे को छोड़ दिया, अलग कर दिया, निकाल दिया। तो अब सारी जिंदगी उसे इस बात की एक खलिश थी कि मुझे खुशी कहीं से मिले। माँ ने उसे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो एक कॉलेज में पढ़ाने लगा। वहां फिर वो यही जब भी लेक्चर देता था उसमें ये भी तस्करा जरूर करता था कि खुशी एक ऐसी तितली है कि जिसके पीछे जितना तुम भागोगे वो तुमसे दूर होती चली जाएगी, लेकिन जब तुम उससे मुंह मोड़ोगे तो वो किसी दिन खुद ब खुद तुम्हारी झोली में आन गिरेगी। बहुत खूबसूरत जुमले थे। और वो मुश्किल कैरेक्टर था। अमीर इमाम उसके प्रोड्यूसर थे। आज भी वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो उस खेल से फिर मुझे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मिली, बहुत लोगों ने पसंद किया। वो जमाना भी ऐसा था कि एक ही चहल था, अगर कोई काम कर लिया है और जरा अच्छा कर लिया है तो बस दूसरे दिन मशहूर बन गए। तो ये है कहानी, उसके बाद फिर करते रहे। सही। अच्छा, इस सारे ये जो आपका स्ट्रगल वाला या एक जो पीरियड था शुरू का, इसमें ये तो आपके साथ नहीं नहीं ना, ये नहीं थी, इसीलिए तो कामयाब हो गया। ये जो हादसा ये देखें, खूबसूरत हादसा, ये कब पेश आया? ये 1969। बच्चों के लिए अंग्रेजी में बता दूं, वो पूछते हैं उनसे कहो 41, तो 41 क्या होता है? 1969 में बिल्कुल मेरी शादी, माशाल्लाह। ठीक। और अरेंज है मेरी, ये मेरी चचाजाद है, यानी इनके वालिद सैयद मोहम्मद तकी। ये वो फैमिली है, रईस अमरोवी सैयद मोहम्मद तकी इनके वालिद, जॉन इंडिया, मोहम्मद अब्बास, ये तकी साहब की साहबजादी है। तो अरेंज थी मेरी, हमने पसंद किया, मुझसे पूछा मैं, मगर आप भूल गए ताय कमाल को आप आइडलाइज करते थे बचपन से। कहते हैं मैं ताय कमाल के पीछे पीछे जाते थे। कमाल मरोही, वो भी हमारे चचा, इनके वालिद भी मेरे चचा। बहुत बड़े नाम, कहते हैं अनकॉन्शियसली मैं उनके पीछे होता था, उनकी बातें मुझे मजा आता था। वो अमरोहा आया करते थे, बॉम्बे में ही रहते थे, जाहिर है वो तो फिल्म के बड़े नामवर लिखने वाले भी हो गए थे, डायरेक्टर भी हो गए थे, प्री पार्टीशन भी। तो मैं छोटा था, तो वो मुहर्रम के दिनों में वो आया करते थे बंबई से अमरोहा। अमरोहा सादात जहां हम पैदा हुए, सैयदों की बस्ती है। तो पता नहीं क्यों, हालांकि उस वक्त इतना नहीं था, कोई मुझे फिल्म भी नहीं देखी थी कोई मैंने उस वक्त तक, लेकिन उनकी बातें अच्छी लगती थी। और वो और इनके वालिद और रईस साहब ये सब गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं पीछे पीछे उनके जुलूस में, तो और अच्छा लगता था मुझे उनकी बातें सुन के। क्या बातें करते थे ये नहीं पता लगता, लेकिन अच्छा लगता था, अट्रैक्शन था एक। तो ये शादी हो गई 69 में। और लोग पूछते हैं भाई शादी कैसे हो गई, तो अरेंज तो थी मैरिज, लेकिन ये जो है मेरी बीबी साहिबा, इन्हें बीबी कहता हूं मैं, शहनाज नाम है, ये कहती है मेरी एक आदत भी है, अम्मी ने डाली मेरी ये आदत कि खाना खा रहे हैं सब लोग, अब खा रहे हैं तो कुछ बच गया, मुन्ने ये खा लो। मैंने नहीं, अब मेरा पेट भर गया, नहीं मैं अब नहीं मैं खा सकता। नहीं मुन्ने कहते हैं मुझे, मुन्ने खा लो बेटा खा लो, ये अम्मी बस पेट भर गया, अब नहीं बेटा खा लो, ये फिक के जाएगा। तो मैं खा लेता था कि फिक के ना जाए, जाए ना हो। खैर, तो एक दिन किसी ने ऐसे ही पूछा मजाक में कि भाई वो शादी कैसे हुई आपके? आपने मैंने कहा भाई शादी क्या हुई, मैं गया चचा के यहाँ, इनके वालिद के यहाँ, तो ये कहीं वहाँ सामने फिर रही थी, तो चचा मेरे कहने लगे कि बेटा ये फिक के जाएगी। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, लाइए। क्योंकि इतनी नाम बेटी है और प्यार भी बहुत करते थे मेरे वालिद।
ये खुशफहमी है मैं कह दीजिए असल में ये खुश बहुत होती थी ये सुना सुना के लोगों को क्या यहाँ हम लोगों को तो जो चीजें बच जाती है हम कहते हैं ये फिक्के जाएगी तो वो खा लेते हैं। मैंने कहा शादी भी इसी चक्कर में हो गई, उन्होंने कहा फिक्के जाएगी मैं ले आया। जबरदस्त जबरदस्त। ओके जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन। हु इज दैट? मैं हैदर बोल रहा हूँ। अरे हैदर साहब, मैंने कहा ये अंग्रेज कौन आ गया है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, कैसे हैं? जी मैडम, अल्लाह का शुक्र। आज माशाल्लाह बहुत ज्यादा नाइस और बड़े क्यूट गेस्ट आए और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अंकल का। आप गायब किधर हैं पहले तो ये बताएं, इतना अरसा हो गया, कोई फोन शोन नहीं, कोई अता पता नहीं। मैडम, मैं एक मैनचेस्टर का चैनल है KBC, हाँ उसका होस्ट हूँ, उसके लिए कोई काम चाहूँ। अरे वाह माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। तो आपका भी इंशाल्लाह कराची आया तो इंटरव्यू लूंगा। और सैटेलाइट है 150 मुल्कों में आता है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी उसकी कवरेज है। ओके 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 ओके, अच्छा जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप मुनव्वर साहब से, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी मैडम, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये काम करते हैं। अल्लाह इसी तरह इन्हें सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका बहुत इनसे यही कहूंगा कि कभी कभार आजाद कश्मीर में चक्कर लगे तो जरूर हमारे गेस्ट बन के आए। अच्छा, मीरपुर आजाद कश्मीर से ताल्लुक है, वहाँ से फोन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कभी आपका चक्कर लगे तो वहाँ जरूर आए। काफी पुरानी बात है, मैं गया था मीरपुर, हम जा चुके हैं। एक फिल्म की हमने वहाँ शूटिंग की थी, एक फिल्म थी सुल्तान डाकू, हाँ। उसकी हमने वहाँ शूटिंग की थी और काफी दिन रहे थे, हम कोई 20 दिन रहे मीरपुर में, बहुत मजा आया था। सर ये कब तक आए थे अंदाज़ा? ये किस जमाने की बात है? हाँ। जी जी सर। ये बात है जनाब लेट 70s की। अच्छा अच्छा, आप तो सर बहुत चेंज हो गया, मीरपुर यूरोप बन गए। यकीनन हो गया होगा, उस जमाने में भी हैदर मियां मैंने देखा था कि वहां पर हर किस्म का बैंक था मीरपुर में, लाइन से बैंक थे, है ना? अब और ज्यादा हो गए होंगे। बिल्कुल, बैंक रोड नीचे बहुत बैंक थे और घर माशाल्लाह जरा सी हाइट पर एक पहाड़ी सी थी, उस पर घर बने हुए थे बहुत से, बड़े खूबसूरत। तो मैंने पूछा ये क्या है सिलसिला, क्यों इतने बैंक हैं? उन्होंने कहा यहाँ हर घर का कम से कम एक आदमी जरूर यूरोप में है। जी जी बिल्कुल। खासतौर पे तो ये कंडीशन है कि इधर नहीं हमारे मीरपुर के आगे डडियाल से पड़े, उधर तो पूरे पूरे गाँव ही खाली। यकीनन यकीनन तो उधर बंदे आयत किए हुए हैं, बंदे को देते हैं पैसे, तो वो रहते हैं घर में। सच्ची बात पूछे, मेरे घर में भी कोई भी नहीं होता। हाँ हाँ जाहिर तो है, एक मुलाजिम ही है, तो मैं खुद भी इंशाल्लाह जल्दी जा रहा हूँ। तो बस घर खाली है तो मैं आऊंगा। नहीं जरूर इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं हैदर मियां, जरा सा यूं ही बसबरी तस्करा, अब क्या हालात हैं वहाँ, जो हमारे साथी सब लोग गए हुए हैं यूके में? जी अंकल माशाल्लाह बड़े अच्छी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं माशाल्लाह, बड़े वेल ऑफ हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है। अच्छा, खुश हैं माशाल्लाह। अंकल सिस्टम ये है कि आजाद कश्मीर का होता है ना, मुजफ्फराबाद बाग, ये पसंद लाता है आजाद कश्मीर का ही हिस्सा है। जो ये मीरपुर बिम्बर कोटली है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिच बने हैं। सही। मीरपुर और डडियाल से सवारी के तकरीबन मैक्सिमम ना इस्लामाबाद पिंडी आधे से ज्यादा इन लोगों का है। सही। तमाम प्लाजे, तमाम कोठियां, तमाम मतलब बहुत ज्यादा माशाल्लाह वेल लोग। हाँ माशाल्लाह, बल्कि उसमें जो असेंबली है वहाँ की, जी जी उसमें भी रिप्रेजेंटेशन है मीरपुर के किसी साहब की। जी जी बिल्कुल। हाँ। जी अंकल, वो पहले से साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अभी मेरे चाचा अंकल हैं राजा जुल्फ़िकार साहब, वो सदर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आजाद कश्मीर के कल भी आए हुए थे।